सर आप म्यूट हैं। Thank you, Manur. Thank you. Moles and strict. We are continuing, बच्चों. Yesterday, I told you there are three ways, three formulas to convert anything into the moles or anything moles into back into anything. I'll rewrite those formulas again. If you have the mass, so moles is equal to what? Mass over AR or MR. If you have volume of gas, so moles is equal to what? Volume of gas divided by 24,000 cm cube if the gas का volume is in cm cube, और अगर dm cube में हो तो 24 dm cube, और volume of gas अगर dm cube में हो तो वो किस में होगा? divided by 24 dm cube. और तीसरा था moles is equal to number of molecules or atoms divided by a fixed number, that is Avogadro's constant 6.02 10 to the power 23. ये तीन तरीके हैं. अगर आपके पास mass है, अगर आपके पास volume है, और अगर आपको number of molecules दिए गए हैं, तो इन चीजों से डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट. सो ये तीन चीजें हैं जो आप मोल्स को रिलेट करते हैं. फिर मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको दिया. आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम असल मोल्स की तरफ चले जाएंगे जो कि स्टोइकियोमेट्री होता है. राइट. तो एक क्वेश्चन क्विकली मेरे साथ लिखिए जरा. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1, हाउ many moles present in 500 cm cube of carbon dioxide gas? How many moles in the 500 cm cube of carbon dioxide? What is the mass of 0.50 moles of NaCl, and what is volume in cm cube of 0.10 moles of CO2? And how many molecules in 0.80 moles of water? Please give it a shot quickly. First one, who's going to tell me the first one? Help me. In the first one, what we have to find? Moles, and what we have been given? Volume. So moles and volume of gas. Moles and volume of gas का क्या formula होता है? Moles is equal to volume of gas divided by 24,000, because volume is in cm cube. So 500 over 24,000. Kids, what is the answer? Hey Siri, what is 500 divided by 24,000? 0.0208. 500 divided by 24,000 is approximately 0.0208. Thank you, Manu. Thank you, Siri. You're welcome.
Okay, 0.02083 moles, right? Next, what mass of 0.50 moles? Now we have to tell the mass and we have been given moles. So formula तो वही रहेगा, moles is equal to mass over mr. Mass हमें determine करना होगा. So what will be the mass? 29.24. वो rearrange कर लेते हैं पहले formula को. Moles multiplied by mr. So moles is 0.50 and what is NaCl mr? 23 plus 35.5. That makes how much? 58.5. So Manu, can you check what is the answer for this? Hey Siri, what is 0.50 multiplied by 58.5? 0.5 times 58.5 is 29.25. Yes, and that mass is always in grams. Okay, so 29.25 grams present. Thank you. What volume of Cm cube of 0.10 moles of CO2? So what we are supposed to determine? Volume of CO2 is equal to what? Moles times, मैंने direct लिख लिया 24,000. So 0.10 into 24,000. Manur क्या होगा? 2400. 2400 cm cube is the answer. The last one. How many molecules in 0.80 moles of water? How many molecules? Number of molecules is equal to what? Moles multiplied by Avogadro's constant. उसी formula को 4.8. rearrange किया है. 0.8 times 6.02 times 10 to the power 23 कितना आता है? 4.8 into 10 to the power 23. 4.8 times 10 to the power 23 molecules. Got it? So now, bacho, let's move on to the stoichiometry. This is a simple thing where you convert these formulas and play around. Asal cheez jo moles ki hai wo hai stoichiometry. Adding them, what is a stoichiometry? बच्चों, those who are on Zoom and those who are present here, I think आप लोग homework नहीं करे. In the next step, we need to speak to your parents directly on the phone calls. Okay? So by the end of this week, if you do not show up with your homework, so from one day we are going to call them directly and report them that the homework's still missing and surely missing. Without practice, you cannot get any grade. कोई जादू की छड़ी नहीं है. आपको grade लेना है तो आपको practice करनी है, वरना ये वाला प्रोसेस तो एक दिन चलता है, दूसरे दिन चलता है, उस दिन समझ आती है, 3 दिन बाद बंदे को याद भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है. ओके, तो अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं और ज्यादा इसके ऊपर लेक्चर नहीं देना चाह रहा, तो हम काम की बात ही करते हैं. बट आपको मैंने बता दिया कि मंडे से हम आपके पेरेंट्स को कॉल करके बॉदर कर रहे होंगे हर रोज कि वो काम नहीं कर रहे आपके बच्चे. ओके, सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट द A stars or A grades from that. Okay. Now, stoichiometry. What is the stoichiometry? Stoichiometry is actually the relationship between the reactants and the product. So that is exactly or precisely the stoichiometry is. It is a relationship between the reactants and the products. What kind of relationship? For example, if I write an equation here, bacho, first you need to understand this thing. ओके, ये एक इक्वेशन है. पहले तो आप मुझे बताएं, ये जो इक्वेशन होती है इसमें ये साइड रिएक्टेंट्स हैं, एरो के बाद प्रोडक्ट्स हैं.
ये क्या क्वालिटेटिव रिलेशनशिप होता है या क्वांटिटेटिव? आप कहते हैं जी ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इट्स नॉट क्वालिटेटिव। का मतलब है क्या ये सिर्फ ये बता रही है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, या ये बता रही है कि मैग्नीशियम की कितनी अमाउंट जब ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट से रिएक्ट करे तो कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। वो कैसे? आप कहते हैं ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, जैसे ये 2 है विद मैग्नीशियम, ये कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 2 मोल्स, कि जब 2 मोल्स मैग्नीशियम, ये जो 1 है इसका मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे? 2 मोल्स। Okay, so this is how the quantitative balanced chemical equation says that whenever I take 2 moles of magnesium and mix it with 1 mole of oxygen, definitely 2 moles of magnesium oxide are going to be formed, and this thing from here on we will call it molar ratio. क्या बुलाएंगे हम इसको? Molar ratio. Okay, for example, in another reaction, N2 plus 3H2 gives us 2NH3. So what is the molar ratio? Yes, so हर दफा हम इसको क्या बुलाएंगे? मोलर रेशियो, एंड इट इज अ फिक्स्ड रेशियो जो ये बता रही है कि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है तो कितने मोल्स अमोनिया बन जाती है? 2 मोल अमोनिया बन जाती है। Okay, so this is thing is known as molar ratio. Similarly, for example, NaOH plus H2SO4 gives us Na2SO4 plus CO2 plus H2O. Okay, so ये 2 हो गया. So what is the molar ratio here? 2 moles of NaOH reacting with 1 mole of sodium hydroxide to produce what? 1 mole of sodium sulfate and 2 mole of water. So this is called, these things are known as molar ratios, and these are the fixed ratios. हमेशा ऐसे ही होगा कि अगर 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स करेंगे, 1 मोल सोडियम सल्फेट और 2 मोल वाटर ही बनेगा. दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू टू बी फाउंड. ओके, अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर. ये तो आपको जनरली आप समझ आ गया कि एवरी बैलेंस्ड इक्वेशन is a quantitative relationship and that quantity is in moles. Okay, and that thing we'll be calling molar ratios. Okay, अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर. राइट, कम टू द क्वेश्चंस बच्चों. कहता है ये क्वेश्चन है कि what mass of MgO is formed when 12 gram of Mg mixed with excess of oxygen, and the equation is 2Mg plus O2 gives us 2MgO. Now बच्चों, I would like you to stop. और मैं आपको एक अभी एसओपी देने लगा हूं. आपने हमेशा मोल्स का कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो उसी एसओपी को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो. राइट, हमेशा सॉल्व होगा, आई गारंटी. वो एसओपी क्या है? वो एसओपी ये है कि आपने 3 स्टेप होते हैं हमेशा मोल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के. स्टेप 1 होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना. अभी अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि मुझे क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड करना है. दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग. तो जरा पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. आपको क्या गिवन है बच्चों? किसका? mg का. और फाइंड क्या करना है? मास ऑफ MgO. तो आप कहते हैं जी मुझे मास ऑफ mg गिवन है और मुझे मास ऑफ MgO फाइंड करना है. यही हो गया ना आपकी.
गिवन वैल्यू अभी नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने कल आपको एक बात बार बार कही कि एज अ केमिस्ट गिवन वैल्यू जो आपको दी जाती है, द वैल्यू दैट हैज बीन गिवन टू यू कैन नेवर बी एनीथिंग एल्स देन मोल्स। वो मोल्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, हम केमिस्ट्री में हम नहीं पहचानते, वो हमें कह रहे हैं 12 ग्राम मैग्नीशियम दिया, हम कहते हैं हम नहीं पहचानते। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपने गिवन वैल्यू को बगैर सोचे समझे किस में कन्वर्ट करना होगा? मोल्स में। तो आप कहते हैं जी पहला काम तो ये है कि मुझे इसके मोल्स चाहिए, तो लेट्स फाइंड आउट मोल्स ऑफ Mg। मास गिवन हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं? अभी अभी सिखाया मैंने। मास को किससे डिवाइड कर देते हैं? AR से, जो कि 24 है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम है ना ये, तो कितना आ गया? 0.50 मोल्स। तो अब आप कह रहे हैं जी गिवन वैल्यू मेरे पास 0.5 मोल्स ऑफ क्या है? Mg। फाइंड क्या करना है? मास ऑफ MgO। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। ये तो हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब कि मुझे क्या गिवन है और मैंने क्या फाइंड करना है। और अगर गिवन वैल्यू इज नॉट इन मोल्स तो फौरन उसको बगैर सोचे समझे किस में कन्वर्ट कर लेना है? मोल्स। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में आप ये सोचते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, मुझे इसने बताया है मैग्नीशियम के बारे में मोल्स, और पूछ किसके बारे में रहा है? मैग्नीशियम। आप कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे मैंगोस खाने को दिए जाए और कहा जाए एप्पल का टेस्ट बताओ। तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप तो होगा ना, देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप हमेशा कहां से मिलेगा? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है मोलर रेशियो। तो आप कहते हैं जी स्टेप 2 है जिन दो चीजों के बारे में जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसके बीच मोलर रेशियोज को देखना। तो कहां से मिलती है मोलर रेशियो? अभी मैंने सिखाया मोलर रेशियो कहां होती है बिटवीन Mg एंड MgO। मोलर रेशियो कहां मिलेंगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। तो देखिए क्या रिलेशनशिप है Mg और MgO का। ऊपर से देखें क्या है? 2 मोल्स टू 2 मोल्स। ओके, तो अब आप कह रहे हैं फिर तो आसान हो गया काम, स्टेप 3 पे आ जाए। स्टेप 3 में कहता है रेशो ले लें। क्या कर लें? रेशो ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें रेशो लेके। मतलब क्या है? रेशो का मतलब क्या है कि अगर 2 मोल मैग्नीशियम से कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है? 2 मोल। हमारे पास गिवन वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द गिवन वैल्यू? 0.5 मोल किसके? Mg के। उसको उसके नीचे लिख दिया। और फाइंड क्या करना है? MgO। उसके नीचे क्या लिख दिया? X। और क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तीसरा स्टेप है। सो X इज इक्वल टू व्हाट? 0.5 टाइम्स 2 ओवर 2। तो क्या आंसर आ गया? 0.5 मोल्स ऑफ व्हाट? MgO। वो कह रहे जी आपको तो मोल्स तो नहीं निकालने थे, आपको फाइंड क्या करना था? वहां देखिए मैथ। तो आप कहते हैं जी वो तो कोई इशू नहीं है, अगर मोल्स हो तो हम उसे मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? मास ऑफ Mg क्या होगा? मास ऑफ Mg इज 0.5 मोल्स ऑफ Mg मल्टीप्लाइड बाय इट्स Mr, जो कि कितना होता है? 0.5 टाइम्स 24 प्लस 16 कितना होगा? 40। 40 कितना हो गया? 20 ग्राम। 20 ग्राम बनता है ये, यही सीरी। 0.5 टाइम 40। 0.5 times 40 is 20. Thank you. So mass of Mg is 20 gram. Okay. So I hope you got it what I did. आपको मोल्स का कोई भी सवाल गिवन हो, आपने यही काम करना है जो मैंने अभी किया। आपने इस SOP को फॉलो करना है। ये जो सिर्फ आपको क्या बता रही है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, मोलर रेशियो क्या है, रेशियो ले लो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ मोल्स 3 नहीं होंगे लेफ्ट साइड पे कि 1 mg का है और नहीं 2। सॉरी, मैग्नीशियम और MgO की बात कर रहे हैं आप? मोलर रेशियो 2:2 है। तो वो देखें, ये एक ब्लास्फेमी है हमारे केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप ये सोचें जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है वो गलत है। 2 और 1 ऐड करके 3 बनना चाहिए। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है उसको चैलेंज करना भी, सोच भी गलत है। ओके, सो जो वो बैलेंस केमिकल कह रही है वही होगा। आपकी बात सही है, मोल्स ऐड होके मोल्स वो बनने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। ओके, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को चैलेंज नहीं करना, ये सोचना है तोबा तोबा, ये मैं नहीं कर सकता। ओके, फौरन
यहाँ तक बात समझ आ गई है? एसओपी भी समझ आ गई है? ओके, आपको मैं अभी क्वेश्चन देने लगा हूं, आपने इसी एसओपी को फॉलो करना है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? फॉरन देखते हैं मुझे क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। दोनों नंबर्स को देखना है कि एमजी गिवन है, एमजीओ फाइंड करना है, फलाना गिवन है, फलाना फाइंड करना है। फिर फॉरन अगर वो गिवन वैल्यू मोल्स में है तो सही है, नहीं है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। और फिर जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनके बीच स्टेप 2 में जाके क्या देखनी है? मोलर रेशो। और स्टेप 3 में उनको कंपेयर कर लेना है। ऊपर मोलर रेशियोज लिखनी है, नीचे जो आपको गिवन वैल्यू है वो लिख देनी है, जो नहीं पता उसको क्या कर देना है? एक्स। और जो आएगा आंसर वो मोल्स में आएगा, बट दैट्स नॉट एन इशू, आप उन मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे जिस की चीज में भी आंसर आपको चाहिए। ओके, नाउ आर यू रेडी? सर ये ओके, आपने 0.5 कहाँ से आया है? 0.5 ये देखो ना, जो मुझे गिवन वैल्यू ऑफ मोल मैथ्स थी मैंने उसको किस में कन्वर्ट किया? मोल्स में। तो मेरी गिवन वैल्यू ऑफ मोल्स बन गई ना, वो मैंने यहाँ लिखी है। ये गिवन वैल्यू ऊपर मोलर रेशियोज होती हैं ये ऊपर, और नीचे वो वैल्यू गिवन होती है और जो नाम गिवन हो वो एक्स हो जाए। ओके, यस। अब इसको बेशक सामने रखें और ये क्वेश्चन है, ये करना है आपने। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। गिव इट अ शॉट जी, अभी आपने खुद करना है। ओके, आई वुड सजेस्ट टू फॉलो द एसओपी। एमजी का एआर क्या होता है? ओके, व्हाट इज द अंडरस्टैंड? आर यू डन? एनीवन डन? जूम पे किया है किसी बच्चे ने? सर एमजी का एआर क्या होता है? 24।
Are you done? Okay. कौन volunteer करेगा जी? What is given and what is the finding? Mass of O2 निकालना है जी, और given क्या है? 10 gram of mg. And as I said, as soon as you see the given value is not in moles, तो क्या करना होगा? Moles में convert करना होगा. तो moles of mg क्या हो जाएंगे? 10 divided by 24 कितने हो गए? 0.416 moles. उसके बाद तो step 2 आ गया. Now you have the given value. You have किन दो के बीच मोलर रेशो देखनी है? mg और O2 के बीच में जो गिवन है और जो फाइंड करना है, तो उनके बीच मोलर रेशो मिलेगी कहां से? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. जो क्या कह रही है? कितने मोल्स mg, कितने मोल O2 के साथ? 1 मोल. फिर आ गया तीसरा स्टेप. ये तो होगी मोलर रेशो. तीसरा स्टेप, इनको कंपेयर करना है, इनको आपस में कंपेयर करना है. क्या गिवन है देखें? 0.416 मोल्स किसके गिवन है? mg के. तो वो मैं उसके नीचे लिख देता हूं. 0.416 मोल्स mg के किसके निकालने हैं? ऑक्सीजन के. तो x कर लेते हैं उसके नीचे. सो x इज इक्वल टू 0.416 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना हो गया? 0.208. ये तो बन गए मोल्स, ओके, ऑफ O2. लेकिन वो हमसे क्या मांग रहा था? वो क्या मांग रहा है? मैस. तो मोल्स हो तो मैस कैसे निकाला जा सकता है? 0.208 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? O2 के mr से. O2 16 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 32. तो 0.08 टाइम्स 32 कितना होगा बच्चों? 0.208 टाइम्स 32. Hey Siri, what is 0.208 times 32? 0.282 times 32 is approximately 9.0265. No, sorry. It is 0.208 multiplied by 32. तो सही करेगी ये. क्या है? 6.656. 6.6. Okay, one more thing. The answers, all the answers in the chemistry calculations are always three significant figures. Always no decimal numbers, three significant figures. Maximum 4 भी जा सकते हैं. Okay. Another question, जी. Another question. Give it a shot. Give it a shot.
हो गया? जी सर। Okay, anyone? Question number this one. How to do it? SOP में पहला पार्ट क्या होता है? Okay, let's understand the question. क्या given है? क्या find करना है? What is given? 300 cm cube of ammonia. And what you are supposed to find? Volume of H2. Volume of hydrogen. The given value should not be other than moles. तो पहला Moles. काम पहला करना है. पहले क्या करने हैं? Moles of ammonia. Ammonia. तो अमोनिया के मोल्स कैसे निकलेंगे? वॉल्यूम हो तो किससे Divided डिवाइड करते हैं? by 24,000. 24,000. तो कितना बन गया? कितना है? 0.0125. 125 मोल्स. अब नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होता है? मोलर रेशो. किस किस के बीच मोलर रेशो देखनी है? मोलर रेशो ऑफ H2 एंड NH3. क्या मोलर रेशो है? 3 मोल से 2 मोल. तो अब गिवन वैल्यू किसकी है? 0.125 किसके? अमोनिया के. अब ये ख्याल रखना जिसके मोल्स है उसी के नीचे लिखना है. 0.125 मोल्स ऑफ अमोनिया थे, मैंने अमोनिया के नीचे लिखे. जिसके फाइंड करने हैं वो हाइड्रोजन था तो एक्स उसके नीचे लिखा. तो एक्स अब उस तरफ चला गया. तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 0.125 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2. तो कितनी वैल्यू आ गई? 0. कितना है? 0.01875. 1875. बहुत ज्यादा नंबर आपने बता दिया, लेकिन मैं लिख देता हूं. ये मोल्स आ गए. निकालना क्या था? वॉल्यूम 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 वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ H2G. तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 0.019 मल्टीप्लाइड बाय 24,000. तो ये वॉल्यूम आ जाएगा. जी यहाँ से कोई बच्चा कुछ बोल रहा था? क्लियर है? ये क्वेश्चन जो आगे मैंने लिखा हुआ है बच्चों, इसको कॉपी कर लें. एक जो मैंने एक वर्कशीट डाली है ग्रुप पे, और उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन लिख दिए हैं. पहले के 20 हैं, बाकी 2 के 10, 10 और 5 है वो. और ये होमवर्क है कल के लिए. ओके. और मैंने आपको बता दिया होमवर्क ना करने पे क्या होगा.